the annual incidence of primary malignant tumor in 2008 is different for males and different for females. So it is 3.8 per 100,000 in males and 3.1 per 100,000 in females. So before on we go and discuss about brain tumors, it is very important to it is very important to discuss about glial and non-glial cells. What are glial cells and what are non-glial cells? Uh, so you can, Vakas, can you see this pointer? Yes sir, pointer नजर आ रहे हैं sir, first call है ये. Sorry. So basically, glial cells is what makes up the central and the peripheral nervous system, and they are different glial cells. So ये जो glial, so you can see कि central ये central nervous system के हैं और ये peripheral nervous system के हैं. We will be talking more about the central nervous system. इसमें सबसे first there's ependymal cells. Ependymal cells is what lines the ventricles where the CSF is. This they basically auto regulate the CSF absorption and production. Then we have the oligodendrocytes. The oligodendrocytes make up the myelin in the central nervous system. So they make up the myelin in the central nervous system, whereas the Schwann cells make up the myelin in the peripheral nervous system. Astrocytes are basically star-like structures which are involved in synapses, neurotransmitter production, and their regulation. Microglia are basically the defense system of the nervous system. They are basically the macrophages. So basically, the reason to tell you about these glial cells is because every tumor, every glial tumor will arise from these cell lines. For example, if a tumor arises from an ependymal cell, it will be called an ependymoma. A glial cell arising from an oligodendrocyte will be called oligodendroglioma. तो ग्लायोमा will be the और और एस्ट्रो जिस तरह एस्ट्रोसाइट से जो होंगे they will be called astrocytoma. So then again, this is a diaphragmatic representation. Number one is the astrocyte. Here you can see, and they are basically involved in the synapses or oligodendrocytes, as I said. Number two is what makes the myelin that covers this. This is the myelin that covers this. Number two, microglia is the defenses, and four ependymals are within the ventricles. Now, they are non-glial cells as well. So non-glial cells are just are cells that are supporting, for example, neurons, Schwann cells, meninges, the dura mater. So ब्रेन के जो ट्यूमर्स होंगे, जो प्राइमरी ब्रेन के ट्यूमर्स होंगे, अब दो तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं. प्राइमरी जो ब्रेन के अपने होते हैं, एंड सेकेंडरी जो विच आर मेटास्टेसिस या metastasis from somewhere else in the body. The primary brain tumors are either glial, which means they are from glial origination, or are from non-glial. So here you can see glial tumors में astrocytoma, जैसे मैंने बताया astrocyte से निकलेंगे, oligodendroglioma, ependymoma इसमें नहीं लिखे हुए. Non-glial cells में there's meningioma, which arises from the dura mater, basically the arachnoid. Schwannoma, जो कि peripheral cells में होते हैं, peripheral nervous system में जो उनके myelin होते हैं उससे बनता है schwannoma. Pituitary tumors होते हैं, which is in the pituitary gland. Pineal tumor हो सकते हैं, which is in the pineal gland. Lymphomas हो सकते हैं, which are inflammatory cells. So basically these, I hope you can all see the cursor. All this is the glial cells, and all this is the non-glial cells. Metastasis में फिर जो होते हैं वो lung, breast, melanoma, renal cells. So this is how you differentiate or classify. One way of classifying brain tumors is glial and non-glial tumors, primary and secondary. Primary is within the brain, secondary is to metastasize होंगे. So then again, as I said, secondary brain tumors होते हैं ये. This is a busy slide. Secondary brain tumor है जो metastasis है. सबसे common breast, lung और GIs होते हैं. Primary tumors which are glial origin in the central nervous system is astrocytoma, oligodendroglioma. अच्छा, जो meninges से आ रहे होंगे, that is a meningioma. फिर germ cells होते हैं, different area में germ cells होते हैं. Germ cells in the fourth ventricle,
Germ cells in the fourth ventricle will cause a tumor called a medulloblastoma. ये बच्चों में सबसे कॉमन ट्यूमर होता है posterior fossa का। मतलब एक सुप्रा टेंटोरियल होता है टेंट के ऊपर, मैं आगे जाके दूसरे डायग्राम में भी दिखाऊंगा। देन देयर इज इंफ्रा टेंटोरियल व्हिच इज बिलो द टेंट। सो इंफ्रा टेंटोरियल ट्यूमर्स में बच्चों में सबसे कॉमन जो होता है वो मेडुलोब्लास्टोमा होता है। देन lymphocytes होते हैं। देखिए, यू कांट रिमेंबर द होल स्लाइड, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो कि ग्लायल ओरिजिन्स होते हैं, उसमें ग्लायोमास हो गए, एस्ट्रोसाइटोमा, फिर मेनिंजीज से होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं जो पिनियल ग्लैंड में हो सकते हैं, वहाँ पे जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं, पोस्टीरियर फोसा में, फोर्थ वेंट्रिकल में हो सकते हैं, एंड देयर इन्फ्लेमेटरी होते हैं लिम्फोमास। अब ये नॉन ग्लायल ट्यूमर्स की लिस्ट है। नॉन ग्लायल सेल्स की, तो जैसा मैंने बताया, ट्यूमर ऑफ द पिलियन ग्लैंड्स, मुख्तलिफ ट्यूमर्स हो सकते हैं वहाँ पे जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं, वहाँ पे मेनिंजियोमा हो सकते हैं, पिनेलोब्लास्टोमा एक खास किस्म का ट्यूमर होता है, पिनेलोसाइटोमा होते हैं। ट्यूमर ऑफ द कैनियल नर्व्स, तो कैनियल नर्व्स हो सकती हैं, जो 7th 8th नर्व होती है उसका सबसे कॉमन ट्यूमर होता है अकॉस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर शॉनोमा। तो ये नॉन ग्लायल सेल ट्यूमर्स है। ट्यूमर ऑफ द मेनिंजीज जिसमें मेनिंजियोमा होते हैं, लिम्फोमास हो सकते हैं, germ cell tumors हो सकते हैं। You can't remember the whole list. What you need to remember are the easy ones. Pineal gland के tumors हो गए, जो भी pineal gland में tumor होंगे, they will be non-glial tumors. Cranial nerves के जो भी tumor होंगे, सबसे common जो cranial nerve का tumor होता है, that is acoustic neuroma. Yes, vestibular schwannoma होता है, जिसमें hearing का मसला होता है। meningioma सबसे common होता है 5th number पे। You can't remember the whole list, just remember few. So this is a diagrammatic representation. अच्छा, वकास कर्सर दिख रहा है? So yes sir, कर्सर दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है, सही, सॉरी यार। Yes, So yes, रेड लाइन पे। so this red line represents the tentorium. इसके ऊपर जो भी है ना, that is called supratentorium. इसके नीचे जो भी है, that is infratentorial. ये सबको आई होप समझ आ गया होगा। ये दिस इज टेंटोरियम सेरेब्राई है, और इसके ऊपर सुप्राटेंटोरियल। अगर आप देखें, जो भी येलो में है वो ग्लायल है, जो भी ब्लू, आई थिंक ब्लू है, वो नॉन ग्लायल है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा नॉन ग्लायल है। ब्रेन के अंदर से नहीं, ब्रेन के अंदर नहीं होता, इट्स नॉट अ ग्लायल, सही है। सो इट्स बेसिकली मेनिंजीज, इट्स अराइजेस फ्रॉम द मेनिंजीज। ग्लायोमास, जब भी मैं एस्ट्रोसाइटोमा या लेगोडेंड्रोग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, जो उनकी सबसे सिवियर फॉर्म है इन दोनों की, उनकी बात करूंगा तो मैं ग्लायल कहूंगा। तो वो कहीं भी हो सकते हैं, फ्रंटल लोब में हो सकते हैं, टेम्पोरल लोब में हो सकते हैं, ऑक्सीपिटल लोब में हो सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, उसमें दिस इज अ नॉन ग्लायल ट्यूमर, क्योंकि यहाँ पे ग्लायल सेल्स नहीं होते। तो पिट्यूटरी एडेनोमा हो सकता है। uh, ये देखें ब्लैक ब्लू कलर में। देन पॉन्टाइन ग्लायमा हो सकता है, पॉन्स के अंदर, ये सेल्स होते हैं, और सॉरी, और पॉन्टाइन ग्लायमा हो सकता है। देन वी हैव अकॉस्टिक नेरोमा हो सकता है, विच इज 7th 8th नर्व। एंड अकॉस्टिक नेरोमा, जिसका मैंने कहा था, 7th 8th नर्व से निकलता है, और ये सबसे कॉमन पेरिफेरल नर्व्स का ट्यूमर होता है। देन वी हैव फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं, इंफ्राटेंटोरियल एपेंडाइमोमा होता है, क्योंकि वहाँ एपेंडाइमल लाइमिंग होती है। और फिर मैंने कहा था मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में सबसे कॉमन होता है। सो ग्लायल न्यूप्लाज्म्स ब्रेन में कहीं भी हो सकते हैं जहाँ ग्लायल सेल्स होते हैं। एंड देन पिट्यूटरी ट्यूमर के अंदर जो होगा नॉन ग्लायल होगा, पॉन्स के अंदर ग्लायल होगा। So I hope you get the ideas of glial and non-glial tumors. So before we go on, we need to discuss the grading of CNS tumor. This is a एक journal grading है, and this is mainly for glial tumors, जिसमें oligodendroglioma, astrocytoma होता है. So this is basically histological appearance. Grade 1 में have low proliferative potential, मतलब number of cells कम होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं तो पॉसिबल ऑफ क्योर आफ्टर सर्जिकल रिसेक्शन होता है, बिकॉज पॉलिफरेटिव नहीं होते, इन्वेजिव नहीं होते। ग्रेड 2 इज इन्फिल्ट्रेटिव, इट स्टार्ट इन्फिल्ट्रेटिंग, बट द पॉलिफरेटिव पोटेंशियल इज लो, मतलब जो सेल की प्रोडक्शन के जो रेट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। इट हैज चांसेस ऑफ रीकरेंस, सही है। तो ग्रेड 2 तक जो है ना वो लो ग्रेड, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर कॉल्ड लो ग्रेड ग्लायोमास। मैं ग्लायोमास की बात कर रहा हूँ, नॉन ग्लायल सेल ट्यूमर्स की बात नहीं कर रहा। ये जो क्लासिफिकेशन है या ये वो है ग्लायल ट्यूमर, ओलिगोडेंड्रोग्लाइमा, एस्ट्रोसाइटोमा, उनकी बात करो। ग्रेड 3 जो है ना, एंड ग्रेड 4 इज हाई ग्रेड। ग्रेड 3 इज कॉल्ड एनाप्लास्टिक,
एनाप्लेजिया हो चुका होता है, एटिपिका न्यूक्लियर एटिपिका हो चुका होता है, देयर इज इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। सो इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्यूमर पूरा निकालना भी मुश्किल होता है। And grade 4 is, so grade 3 is called anaplastic, grade 4 is called glioblastoma multiforme or GBM, glioblastoma multiforme GBM. So it has necrosis, very mitotically active होता है, बहुत ज़्यादा cells होते हैं उसमें, मतलब you can see necrosis, you can see hemorrhage. So this is the basic grading. What you need to remember is grade 1 and grade 2 is low grade, grade 3 is anaplastic, grade 4 is GBM or glioblastoma multiforme, grade 1 and 2 is low grade, grade 3 and 4 is high grade. तो जितना ग्रेड ज्यादा होगा उतना सर्वाइवल कम होगा, उतना रिसेक्शन के चांसेस मुश्किल होंगे, उतना वैस्कुलर ट्यूमर होगा। So this is just a general slide showing the histopathology starting from grade 2. So it's not very cellular and there's no necrosis. सही है, एंड उनका जो माइटोटिक इंडेक्स होता है वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। ग्रेड 3 विच आई टोल्ड यू इज एनाप्लास्टिक, उसमें बेसिकली हाई सेलुलैरिटी हो जाती है और न्यूक्लियर एटिपिका स्टार्ट हो चुका होता है। ग्रेड 4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि माइक्रोवास्कुलर निक्रोसिस शुरू हो जाती है। आई एम नॉट अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एक्सपर्ट सो आई वोंट गो इनटू द स्लाइड्स, बट तो ग्रेड 4 में नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, नया वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होता है जिसकी वजह से ट्यूमर हो जाता है और नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। सो बेसिकली दिस इज, फॉरगेट दिस, इन जेनेटिक मार्कर्स को भूल जाएं, ये दिस इज वेरी, दिस बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। तो एक ग्लायल सेल होता है, लेट्स से एन एस्ट्रोसाइट होता है। एस्ट्रोसाइट जब ग्रेड 1 या 2 ट्यूमर बनता है, व्हिच इज एन एस्ट्रोसाइटोमा, तो दिस इज लो ग्रेड ट्यूमर 1 और 2। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर इनएक्टिवेशन हुई या डिलीशन हुई ऑफ जेनेटिक्स वो हुई कि उसकी वजह से जो नॉर्मल एस्ट्रोसाइट था वो एक ट्यूमर बन गया जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा है। सो एस्ट्रोसाइटोमा देन फिर और आगे किसी जीन डिलीशंस की वजह से एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा बन गया विच इज ग्रेड 3, एंड देन वो आगे चल के ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होता है। नॉर्मली यही होता है कि ग्रेड 1, तो दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, कि ग्रेड 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, जैसे ग्रेड 1 और 2। जरूरी नहीं है कि ये साइकिल पूरी इस तरह चले। जीबीएम कैन कैन अकर विदाउट प्रायर ग्लैमर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट जीबीएम बन जाए विच इज ग्रेड 4। So basically brain tumors में I will be discussing more about glial neoplasm, क्योंकि वो बहुत कॉमन होते हैं। और उसके बाद सेकंड सबसे कॉमन मेनिंजियोमास होते हैं। इट्स अनफेयर कि एक उसमें पूरा कवर हो जाए, सो आई विल टॉक मोस्ट अबाउट ग्लायल न्यूप्लाज्म। ग्लायोमास कहीं पे डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, सही है। तो ये एक लिस्ट है ग्लायोमास की। इसमें एस्ट्रोसाइटिक ट्यूमर्स हैं जो कि एस्ट्रोसाइट से बने हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लायल ट्यूमर्स हैं। देन इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है, ओलिगो एस्ट्रोसाइटिक एंड एपेंडाइमल। कोई बहुत परेशानी की बात नहीं, जिस तरह की सेल लाइन है उस तरह की डिवीजन है। ये एस्ट्रोसाइट्स है, ये ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, ये ओलिगो और एस्ट्रोसाइट दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बन गया और एपेंडाइमल ट्यूमर्स है, सही है। अब सबके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है। याद रखें ग्रेड 3 एनाप्लास्टिक होता है, दिस इज हाई ग्रेड, एंड ग्रेड 4 जहां भी होगा वो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होगा। ग्रेड 4 सबका एक ही होता है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। ग्रेड 3 सबका एनाप्लास्टिक होता है। तो एस्ट्रोसाइटोमा में जो ग्रेड 1 होते हैं, विच आर वेरी बिनाइन ट्यूमर्स, दो होते हैं, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह ओलिगोडेंड्रोग्लायमा में 2, 3, 4 होता है, ग्रेड 1 नहीं होता है, 4 सबका जीबीएम होता है, सही है। इस स्लाइड में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ग्रेड 1 वो अर्ली एज में ज्यादा होते हैं, और जितना मेलिग्नेंट होता है उतनी एज बढ़ती जाती है, और सेक्स प्रीडोमिनेंस को ऐसी ज्यादा नहीं होती। सो जस्ट ग्लायल ट्यूमर्स उनके ग्रेड 1 मोस्टली एस्ट्रोसाइटोमास में होते हैं। ग्रेड 1 एंड 2 लो ग्रेड है, ग्रेड 3 एंड 4 हाई ग्रेड है, ग्रेड 4 इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ग्रेड 3 इज एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। सो कुछ ट्यूमर्स के बारे में ग्रेडिंग के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, मेडुलोब्लास्टोमा जिसका मैंने बच्चों को आपको बताया था, जर्म सेल ट्यूमर होता है, जर्म सेल से निकलता है, फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर है, बच्चों में इंफ्राटेंटोरियल सबसे कॉमन ट्यूमर होता है, इट्स अ ग्रेड 4 ट्यूमर, व्हिच मींस इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बुरी है, अगर ये पूरा ना निकले द चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव। इसी तरह जो दूसरा मेनिंजियोमा होता है, मेनिंजियोमा जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, मेनिंजियोमा दिस इज अ बिनाइन ट्यूमर अगर वो ग्रेड 1 हो। मेनिंजियोमा की अपनी ग्रेडिंग होती है, जिसमें एटिपिकल मेनिंजियोमा ग्रेड 2 होता है, फिर एनाप्लास्टिक होता है, और फिर तो जितना हाई ग्रेड
होगा उतना रिकरेंस के चांस ज्यादा होंगे। तो ग्रेड 1 जो ट्यूमर मेनिंजोमा होता है, दिस इज नॉट द क्लासिफिकेशन जो ग्लाइल की है। याद रखना, मेनिंजोमा इज बेसिकली नॉट अ ग्लाइल ट्यूमर, ये ड्यूरा से आता है। तो मेनिंजोमा नॉर्मली ग्रेड 1 होता है, इट्स बिनाइन। जब एटिपिकल हो जाता है ग्रेड 2 तो उसकी रिकरेंस के चांसेस बन जाते हैं, और जब एनाप्लास्टिक होता है तो बिल्कुल ही निकल जाता है। सेलर रीजन्स में जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है, पिट्यूटरी एडेनोमा होता है, या क्रेनियोफारिंजियोमा होता है, दे आर ऑल बिनाइन ट्यूमर्स। इसी तरह जो पेरिफेरल नर्व्स के शॉनोमास होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 7-8 नर्व का कॉम्प्लेक्स होता है, फेशियल नर्व और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का जो ट्यूमर होता है, जिसको वेस्टिबुलर शॉनोमा कहते हैं, तो वो भी बिनाइन होते हैं। इफ आई कैन जस्ट गेट होल्ड ऑफ माय, ये शॉनोमा जो है ये भी बिनाइन होता है। सब नहीं याद रख सकते। मेडुलोब्लास्टोमा जो बच्चों में जर्म सेल ट्यूमर होता है, इन्फेंटाइल सबसे कॉमन ग्रेड 4 ट्यूमर। मेनिंजियोमा जो बहुत कॉमन होता है, ग्रेड 1 ट्यूमर। उसके फिर मेनिंजियोमा की अपनी एक अलग क्लासिफिकेशन होती है, उसमें टिपिकल होता है विच इज ग्रेड 2, एंड देन एनाप्लास्टिक इज ग्रेड 3। जितना ज्यादा ग्रेड 1 मेनिंजियोमा इज वेरी बिनाइन, कोई रिकरेंस के चांसेस होते हैं। ग्रेड 2 में रिकरेंस के चांसेस अबाउट 15 to 20%, and grade 3 is about 35%. अच्छा, अब ये एक और आपको परेशान करने के लिए स्लाइड है। इसमें सिर्फ ये बताने के लिए WHO की क्लासिफिकेशन जो है सेंट्रल नर्वस ट्यूमर्स की, वो इस तरह है। इसमें वी विल नॉट गो इनटू ट्यूमर्स, एस्ट्रोसाइटोमास और ओलिगो, ये ट्यूमर्स हैं। एपेंडाइमल ट्यूमर्स हैं, अदर ग्लायोमास हैं, जो क्रोइड प्लेक्सस जो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर या फोर्थ वेंट्रिकल के होता है। क्रोइड प्लेक्सस एक प्रोड्यूस किया, तो उसके ट्यूमर्स हो सकते हैं, क्रोइड प्लेक्सस ट्यूमर्स। फिर नॉन न्यूरोनल ग्लैंडुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, इनको छोड़ दें, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। पिनियल ग्लैंड के ट्यूमर्स हो सकते हैं, एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो दिस वाज जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू, दिस वाज जस्ट टू शो यू कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैसी है। वी विल नॉट गो इनटू इंडिविजुअल लिस्ट। मेनिंजियोमास हो सकते हैं, लिम्फोमास, ये इन्फ्लेमेटरी ट्यूमर्स होते हैं। लिम्फोमा कैन बी प्राइमरी ब्रेन का अपना हो सकता है, सेकेंडरी जो कि बॉडी से आया हो, क्योंकि ब्रेन बॉडी में दूसरी जगहों पे भी लिम्फोमास होते हैं। एंड देन वी हैव जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल ट्यूमर्स 3-4 जगहों पे हो सकते हैं, पिट्यूटरी में हो सकते हैं, पिनियल ग्लैंड में हो सकते हैं। गर्ल जर्म सेल ट्यूमर की खास बात है कि दे आर मोर प्रेडोमिनेंट इन फीमेल्स। एंड देन वी हैव सेलर के अंदर सेला इज सेला टर्शिका, वहाँ पे जो ट्यूमर्स हो सकते हैं वो क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो सकते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं। एंड देन वी हैव मेटास्टैटिक ट्यूमर। तो बेसिकली एक और चीज़ है ये, जो ग्लाइल ट्यूमर्स में आजकल बहुत काम बात बताई जा रही है, बड़ी सिंपल, इसको अंदर कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो देखिएगा। ये सारे ग्लाइल ट्यूमर्स हैं। ग्लाइल ट्यूमर सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, आइसोसिट्रीन डाइहाइड्रेट। ये एक बेसिकली समझ लें कि ये जीन है। तो देखा जाता है कि IDH जीन जो है उसकी म्यूटेशन हुई भी नहीं हुई हुई। अगर उसकी म्यूटेशन नहीं हुई हुई, इफ देयर इज नो म्यूटेशन देन इट्स कॉल्ड वाइल्ड टाइप। इफ देयर इज म्यूटेशन देन इट्स कॉल्ड IDH म्यूटेंट। ये ग्लायोमास की बात कर रहा हूँ। इसमें फायदा ये है कि इसमें प्रोग्नोसिस का बेहतर है। जो IDH जो म्यूटेटेड होते हैं, IDH म्यूटेंट होते हैं, उनको करेक्ट करने का तरीका भी होता है, तो उनकी प्रोग्नोसिस बेहतर होती है। तो वाइल्ड टाइप की प्रोग्नोसिस बुरी होगी, तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें म्यूटेशन नहीं है। जो IDH म्यूटेंट है, जो जिसमें IDH म्यूटेट कर चुकी है आइसोसिट्रीन डाइहाइड्रेट, उसमें फिर उसमें एक और होता है 1p19 की क्यू क्यू डिलीशन। देखते हैं बहुत ज्यादा हो जाएगा बेसिकली आजकल। मुझे एक सॉरी एक कॉल लेने दो। हेलो सर, मैं कॉल एक लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। मालिक बात करूँ। तो बेसिकली आज जो WHO का जो नया क्लासिफिकेशन आया है फॉर ग्लायल ट्यूमर्स, उसमें इज जस्ट नॉट द सेल टाइप कि वो एस्ट्रोसाइट है, इट इज आल्सो द जेनेटिक म्यूटेशन। ये थोड़ा मुख्तलिफ होगा। सिर्फ आप ये याद रखें कि IDH म्यूटेंट जिसमें म्यूटेशन हो गई, IDH वाइल्ड टाइप। So how do you assess a patient with brain tumor? So सबसे important age of the tumor, because tumors in adult is different from tumors in pediatric population. आगे चल के इसकी बात करेंगे। Then we talk about the localization. Localization में we will talk about कि इंट्रा एक्सियल है या एक्स्ट्रा एक्सियल है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होता है, कौन से कंपार्टमेंट में है। मतलब ये लोबार ट्यूमर है। लोबार ट्यूमर मींस कि इट इज इन द फ्रंटल लोब, इज इट इन द टेम्पोरल लोब, इज इट इन द ऑक्सीपिटल लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, पिनियल ग्लैंड के अंदर है, लैटरल वेंट्रिकल के अंदर है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसके अंदर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो फिर ये दूसरा देखना होता है कि इज इट लोकलाइज,
और इज इट क्रॉसिंग द मिड लाइन, दूसरी साइड पे जा रहा है लाइक अ बटरफ्लाई। दूसरा ये देखना होता है कि ये एक्स्ट्रा एक्सियल इंट्रा एक्सियल है, किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को तो इसने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, लिक्विड स्ट्रक्चर लाइक फॉर एग्जांपल स्पीच में स्पीच एरिया, मोटर एरिया। फिर सीटी और एमआरआई देखना होता है, उसको सीटी और एमआरआई के बेसिस पे आपको ये देखना होता है कि क्या आपकी डायग्नोसिस बन रही है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि लोकलाइज होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एक ही होता है, वेल लोकलाइज होता है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीसेंट्रिक होते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सियल और इंट्रा एक्सियल लीजन, ये भी एक क्लासिफिकेशन है ब्रेन ट्यूमर्स की। एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन मींस दैट the tumor is not from within the brain. तो एक एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेनिंजोमा। इट्स नॉट अ ग्लायल ट्यूमर, मतलब ये ब्रेन के अपने सेल से नहीं आता है, ये ड्यूरा मैटर से आता है। तो ये अगर देखें तो दिस इज एक्स्ट्रा एक्सियल, मोस्ट प्रॉब्ली मेनिंजोमा ही है। तो आप देखें कि इट इज नॉट इन्वेडिंग द ब्रेन, इट हैज एक्चुअली पुश द ब्रेन डाउन। वैरल ये एक इंट्रा एक्सियल लीजन है, इसमें देखें दिस इज विद इन द ब्रेन मैटर। सही है। अच्छा अब ये देखें, ये CSF है, ये CSF है। एंड ये CSF को देखिए इसने एक्सपैंड किया हुआ है, इसने उसको, और क्योंकि ये इट्स नॉट इन्वेडिंग, अगर कोई चीज इन्वेड करेगी तो वो छोटा कर देगी, कोई चीज अगर बाहर से आएगी तो वो उसको फैला देगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, एज सून एज आई सिट ऑन द चेयर, तो चेयर की जो क्वेश्चन होता है वो एक्सपैंड कर जाता है। सो दैट्स एन, बिकॉज आई एम नॉट, चेयर का क्वेश्चन का अपना हिस्सा नहीं है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन। ये ड्यूरल बेस्ड होते हैं। ये जो CSF स्लीव नजर आ रही है, CSF नजर, इसको एक्सपैंड कर रहा है, इट इज नॉट विद इन द ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एक्सियल लोकेशन का क्या है कि एक CSF क्लेफ्ट दिखती है, जिस तरह ये दिखती है CSF क्लेफ्ट, इट इज अच्छा अच्छा, ये वेसल्स को पुश करता है। अगर फर्स्ट करें, ये वेसल है, इसने पुश किया, जबकि ये वेसल्स को इन्वेड करता है। इंट्रा एक्सियल में वेसल इन्वेड करता है। जो एक्स्ट्रा एक्सियल है वो मेनिंजल बेस होता है, तो उसकी ब्रॉड बेस होती है। देखिए उसकी बेस कितनी ब्रॉड है। सो ओवरलाइन बोन चेंजेस हो सकती है। मेनिंजोमास में बड़ा कॉमन होता है कि बोन थोड़ी हाइपोस्टोटिक होती है, थोड़ा सा थिक होती है। तो एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन, इंट्रा एक्सियल लीजन, ग्लायोमास इंट्रा एक्सियल होते हैं। मेनिंजोमास जो होते हैं वो बेसिकली एक्स्ट्रा एक्सियल होते हैं। मेटास्टेसिस जो होती हैं वो एक्स्ट्रा एक्सियल इंट्रा एक्सियल दोनों हो सकती हैं। इन्फ्लेमेटरी ट्यूमर सच एज लिम्फोमा इंट्रा एक्सियल होती है। तो इंट्रा एक्सियल एक्स्ट्रा एक्सियल की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं मेनिंजोमास वर्सेस ग्लायोमास। तो देन अगेन वही बात मैं कर रहा हूँ कि CSF क्लेफ्ट होती है, वेसल्स को ये डिस्प्लेस करता है। ये भी एक जैसे सेरेब्रोपोंटाइन एंगल, ये बेसिकली इंफ्राटेंटोरियल रीजन है, और ये ब्रेन स्टेम यहाँ पे, ये फोर्थ वेंट्रिकल कंप्रेस होकर इस तरफ गया हुआ है। ये देखिए ड्यूरल बेस्ड है बिल्कुल, इसका ड्यूरा से, यहाँ पे ड्यूरा होता है उसके साथ बेस्ड है। एंड इट इज नॉट फ्रॉम विद इन द ब्रेन, इट इज कंप्रेसिंग द ब्रेन। एंड यू कैन सी एक CSF क्लेफ्ट, ये आपको यहाँ पे ये CSF क्लेफ्ट थोड़ा सा, ये देखें, ये CSF क्लेफ्ट दिख रहा है आपको, CSF दिख रहा है। तो बेसिकली इंट्राएक्सियल ग्लायोमास, एस्ट्रोसाइटोमा, लेगोडेंड्रोग्लायोमा, एक्स्ट्राएक्सियल बेसिकली मेनिंजोमा, याद रखिएगा। सो एज आई सेड, इंट्राएक्सियल ट्यूमर्स के जो है एस्ट्रोसाइटोमास है, लेगोडेंड्रोग्लायोमास हैं, जो कि ग्लायल ट्यूमर्स है, मेट्स हो सकते हैं, मेटास्टेसिस दोनों हो सकते हैं, एक्स्ट्राएक्सियल इंट्राएक्सियल, एपेंडाइमोमा। एंड देन एक्स्ट्राएक्सियल में सबसे कॉमन मेनिंजोमास है जितने स्कल बेस होते हैं, जैसा क्रेनियोफैरिंजियोमा है या पिट्यूटरी है। इसमें इंट्राएक्सियल एक्स्ट्राएक्सियल में कंफ्यूज ना हो। इंट्राएक्सियल में जस्ट रिमेंबर कि जो भी ग्लायल ट्यूमर्स होंगे, एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, वो सब इंट्राएक्सियल होंगे, मेनिंजोमा सारे एक्स्ट्राएक्सियल होंगे। दिस इज अगेन एन एक्स्ट्राएक्सियल लीजन, ड्यूरल बेस्ड, बहुत बड़ा सा है, ब्रेन को पुश किया हुआ, ब्रेन के अंदर नहीं है। एंड दिस इज एन इंट्राएक्सियल लीजन, देखें इट्स विद इन द ब्रेन, इट इज नॉट, इट इज इन्फिल्ट्रेटिंग, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ये यहाँ पे, इट इज फ्रॉम विद इन द ब्रेन मैटर। कोई CSF क्लेफ्ट नहीं दिखेगा, एंड हर चीज को ही छोटा करेगा। देखें यहाँ वेंट्रिकल्स को छोटा किया हुआ है, एक्सपैंड नहीं किया हुआ। एंड ये बेसिकली MRI के इमेजेस है। T1 होता है, ये T2 है, T2 is to see T1 नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए होता है, T2 एनाटमी देखने के लिए होता है। ये ट्यूमर है, और ये जो ये ट्यूमर है सारा, और ये वाइट वाइट जो है दिस इज एडीमा। दिस एडीमा इज इंटरस्टिशियल एडीमा होता है। दो तरह के एडीमास होते हैं ब्रेन में, साइटोटॉक्सिक एंड इंटरस्टिशियल। ये बाद में बात करेंगे क्या होता है। और ये जो ये वाला है, दिस इज कंट्रास्ट एनहांसमेंट, कि आपने कंट्रास्ट दिया और यहाँ पे देखें कोई लाइट अप नहीं हो रहा T1 प्लेन में, दिस इज प्लेन विदाउट कंट्रास्ट दिया, कंट्रास्ट के साथ है, देखो यहाँ लाइट अप हो रहा है। तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली सम सॉर्ट ऑफ हाई ग्रेड लीजन। जब भी कंट्रास्ट एनहांसमेंट होती है
जब वो कंट्रास्ट एनहांस करता है तो और वो हाई ग्रेड लीजन हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, तो खतरनाक चीज होती है. So we talk about the common intraaxial tumors, but pediatrics में सिर्फ दो नाम याद रखने की जरूरत है बच्चों में. इंफ्राटेंटोरियल जो टेंट के नीचे होते हैं, मेडुलोब्लास्टोमा जो फोर्थ वेंट्रिकल, और एपेंडाइमोमा, ये दो याद रह जाए बहुत है. सुप्राटेंटोरियल बच्चों में एस्ट्रोसाइटोमा, पिलियोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा जो ग्रेड 1 होता है वो बहुत कॉमन होते हैं. पीएक्स डीनेट्स और पीनेट्स खास उनके ट्यूमर होते हैं, सब नहीं याद रख सकते. एस्ट्रोसाइटोमा बस याद रखें, और एस्ट्रोसाइटोमा की फिर वेरिएशन होती है पीएक्स और ये ट्यूमर्स. जो अडल्ट्स में इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स मेटास्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन. So if you see a lesion in the posterior fossa in an adult patient, it is a metastasis until proven otherwise. कोई भी आप लीजन देखें posterior fossa में, it is a met until unless आपको पूरा रूल आउट ना हो जाए कि वो मेटास्टेसिस नहीं है. सुप्राटेंटोरियल भी मेट्स हो सकते हैं, बट इंफ्राटेंटोरियल द फर्स्ट थिंग. एंड जितने ग्लायल ट्यूमर्स होते हैं वो सब सुप्राटेंटोरियल कॉमन होते हैं अडल्ट में. हाई ग्रेड एनाप्लास्टिक, जीबीएम. तो अच्छा, मिड लाइन क्रॉसिंग ट्यूमर्स होते हैं, बेसिकली ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होते हैं. देखें, दे आर क्रॉसिंग द मिड लाइन लाइक अ बटरफ्लाई, सॉरी, यहाँ से लेके यूं करके जा रहे होते हैं. तो इसमें इसमें इसकी डिफरेंशियल्स मुख्तलिफ है. ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म विच इज ग्रेड 4 ट्यूमर्स. रेडिएशन के बाद रेडिएशन नेक्रोसिस होते हैं, कुछ मेनिंजियोमास होते हैं. मल्टीफोकल डिजीज होती है कि मल्टीपल होते हैं, ये जीबीएम हो सकती है, लिम्फोमास हो सकते हैं. लिम्फोमास बेसिकली हमेशा वेंट्रिकल के गिर्द देखते हैं. एंड इसके जो दवाई होती है इसकी ट्रीटमेंट सिस्टम में कीमोथेरेपी. रिंग एनहांसमेंट बेसिकली होता क्या है कि ये जब भी कंट्रास्ट देते हैं और इस तरह रिंग की तरह एनहांस करें, तो ये बेसिकली दिखाता है कि इसकी मल्टीपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है. ये मेटास्टेसिस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एज. For 24 years of old male with this enhancement, you will think more about high-grade tumor like a glioblastoma multiforme or an abscess. कोई 60 years old है, उसमें आपको इस तरह दिख रहा है, तो you will think more about metastasis. तो इसकी डिफरेंशियल में मेट्स आ सकते हैं, मेटास्टेसिस आ सकते हैं, हाई ग्रेड ट्यूमर्स आ सकते हैं, इन्फेक्टिव. तीन चीजें याद रखने की जरूरत है: मेट्स, एब्सेस एंड हाई ग्रेड ट्यूमर, जिसको जीबीएम कहते हैं. So हर लोब का, every lobe has its own function, and depending on the lobe, uh, depending on the lobe जो वहाँ पे ट्यूमर होगा तो उसका वही clinical features होंगे. For example, a tumor in the frontal lobe will have personality and emotional issue. Problem solving और reasoning में बहुत मसला होगा. तो frontal lobe का काम is basically mood है. वहाँ पे यूरिन कॉन्टिनेंस का सेंटर भी है, तो अक्सर जो फ्रंटल लोब के ट्यूमर्स होते हैं उसमें इनकॉन्टिनेंस हो जाते हैं. फ्रंटल लोब में ही अगर पीछे आ जाए, फ्रंटल लोब में ही पीछे आ जाए, तो यहाँ पे सेंट्रल सल्कस होता है. फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में एक सेंट्रल सल्कस होता है, एक लाइन सी होती है, वो सल्कस कहते हैं उसको, सेंट्रल सल्कस. उसके आगे प्री सेंट्रल जायरस होता है. जायरस इज एन आइलैंड, सल्कस इज अ डिप्रेशन. यहाँ पे दिख नहीं रहा. लेट्स से दिस इज अ सल्कस, ये डिप्रेशन है ब्रेन के अंदर. So this is precentral gyrus. This is the motor area. Precentral gyrus is the motor area. Central sulcus के आगे. Central sulcus के पीछे parietal lobe में is the sensory area. तो यहाँ पे कोई भी चीज होगी तो motor deficit होगा. और यहाँ पे representation कैसे होती है कि यहाँ पे उल्टा होता है. foot सबसे medially foot होता है, and then यहाँ पे hands, and यहाँ पे फिर face आ जाता है, यहाँ पे हैंड का एरिया आ जाता है. तो यहाँ पे इसकी अपनी खास रिप्रेजेंटेशन है मोटर कॉर्टेक्स में. ग्राफ एक जोग्राफिकल लोकेशन है कि हर चीज का अपना एरिया है, उसका वो है. पैराइटल लोब में अगर आ जाते हैं तो पैराइटल लोब में अगर लेफ्ट पैराइटल लोब की बात करें, सॉरी, अगर टेम्पोरल लोब में आ जाते हैं तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब की बात करें तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब के दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन. स्पीच लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होती है, वर्निकीज एरिया. तो वहाँ पे अगर कोई मसला होगा तो वर्निकीज डिस्फेजिया होगा, एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया होगा. एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया क्या होगा? He will ask the patient what is your name and he will say something else. He will talk gibberish. जो जवाब होगा it will not make sense. अच्छा, वर्निकीज एरिया इज इन लेफ्ट टेम्पोरल लोब. जो ब्रोकाज एरिया होता है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है. लेफ्ट फ्रंटल लोब. ब्रोकाज एरिया में क्या होगा कि कंप्लीट मोटर एफेजिया होगा. द पेशेंट विल अंडरस्टैंड बट विल नॉट टॉक. बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट ही अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट ही कैन नॉट टॉक बिकॉज उसका ब्रोकाज एरिया काम नहीं कर रहा.
टेम्पोरल लोब में मेमोरी का भी होता है, तो मेमोरी के इश्यूज होंगे। पैराइटल लोब में सेंसरी फंक्शंस बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी कीप्स अ कॉइन इन योर हैंड, और आपके आंख बंद करने के लिए कहें और उसके आपके हाथ में एक कॉइन रख दे, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट दिस इज अ कॉइन। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब। सही है, एग्नोसियास कहते हैं। आपके हाथ पे अगर कोई 1 या 2 लिखे तो आप वो समझ जाएंगे। तो ये भी पैराइटल लोब का फंक्शन है। लेफ्ट पैराइटल लोब के कैलकुलेशन का फंक्शन है। और इसी तरह ऑक्सीपिटल लोब में विजन है। सेरेबेलम में जॉइंट कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल बैलेंस है। तो सेरेबेलर जिनको लीजन्स होते हैं उनमें एटेक्सिया होता है। ब्रेन स्टेम में क्रेनियल नर्व पैल्सीज होती है। तो मुख्तलिफ डिफरेंट लीजन्स विल प्रेजेंट विल डिफरेंट प्रेजेंटेशन। दिस इज जस्ट अ लिस्ट। हेडेक हो सकता है, व्हिच इज आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। पेपिलोइडेमा इज बेसिकली ऑप्टिक नर्व के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और ये आप पेपिलोइडेमा जो है आप ऑप्टिक डिस्क देखते हैं थ्रू फंडोस्कोपी। नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। बेसिकली पैरासिम्पथेटिक ड्राइव होती है। सीजर्स हो सकते हैं, कन्वर्जन। सुप्राटेंटोरियल रीजन में सीजर्स होते हैं, इंफ्राटेंटोरियल रीजन में सीजर्स नहीं होते। ड्राउजीनेस हो सकती है। फ्रंटल लोब में पर्सनालिटी और मेमोरी चेंजेस हो सकते हैं। टेम्पोरल लोब में जिस तरह मैंने कहा कि वर्निकीज एरिया होता है, तो चेंजेस इन स्पीच हो सकता है। मोटर एरिया जो होता है फ्रंटल लोब का सबसे पोस्टीरियर पार्ट, प्री सेंट्रल जाइरस। प्री सेंट्रल जाइरस जो सेंटर से वायलेंट वीकनेस हो सकती है। सेरेबेलम में बैलेंस इशू हो सकता है। और जब ऑक्सीपिटल लोब में होगा तो आई का इशू, विजन का इश्यूज होंगे। तो why is radiology important? First, it is important to diagnose. MRI brain with contrast is the gold standard. कुछ लोग सीटी स्कैन भी पहले करा लेते हैं अगर एमआरआई अवेलेबल नहीं होता। तो सीटी स्कैन में कभी कभी कैल्सिफिकेशन दिख जाती है। तो कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिनमें कैल्सिफिकेशन होती है, जिस तरह मेनिंजोमास होते हैं। कुछ ग्लायल ट्यूमर्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास। तो MRI brain with contrast is the gold standard. So what will MRI tell you? The first thing it will tell you कि ये इंट्राएक्सियल लीजन है या एक्स्ट्राएक्सियल लीजन है। इंट्राएक्सियल लीजन कैन बी ग्लायोमास, एक्स्ट्राएक्सियल सबसे कॉमन मेनिंजोमास होते हैं। उसका कंपार्टमेंट बताइए किस कंपार्टमेंट में है, फ्रंटल लोब में है, टेम्पोरल लोब में है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। वो ये बताएगा कि किस एरियाज को इन्वॉल्व किया हुआ है। वो बताएगा एक, इट विल टेल यू टू मेक एन अजम्पशन के यू विल बी एबल टू मेक एन अजम्पशन कि कितना इसका, ये कितना हाई ग्रेड ट्यूमर है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन बेसिस ऑन रेडियोलॉजी। गोल्ड स्टैंडर्ड जो हिस्टोलॉजिकल ग्रेड होता है वो तो हिस्टोपैथोलॉजी में पता चलता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। बट अगर कोई कंट्रास्ट लेने के बाद वो कंट्रास्ट इनहेंस कर रहा है, लाइट अप हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाई ग्रेड ट्यूमर है। तो यू विल बी एबल टू टेल द फैमिली कि अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है कि इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है। Life expectancy in a GBM is after all the treatment is 14 months. So patient hardly lives more than 14 months. So you have to tell the family. No? Meningiomas may, on the other hand, life expectancy is very good. Recurrence rate is very less considering grade 1 meningioma. And so MRI brain with contrast से आपने diagnose कर लिया, then आपने treatment plan दे दिया कि भाई कि किस तरह अपनी आपने किन्योटमी करनी है या सिर्फ बायोप्सी करनी है। सो फिर आपने फॉलो अप एमआरआई करवाया उसमें रेजिडुअल या रिकरेंस देखने के लिए। नॉर्मली ग्लायोमास के लिए इमीडिएटली कराते हैं विदिन 72 आवर्स या 6 वीक्स पे कराते हैं। और मेनिंजियोमास के लिए यू कैन डू इट इन 3 मंथ्स बिकॉज वो बिनाइन होते हैं। So coming on to the management, so if you see a patient in ER with जिसका present किया है with headache, seizures, vomiting या किसी एक साइड पे वीकनेस है, मेमोरी के इश्यूज है, तो नॉर्मली यू गेट एन एमआरआई। सबसे पहले एमआरआई स्क्रीनिंग कराते हैं। एमआरआई स्क्रीनिंग जो होता है उसमें सिर्फ T2 होता है, बाकी इमेजेस नहीं होता। T2 वेटेड इमेज होता है। जब एमआरआई में आपको कुछ देखा तो हमने एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट कराया। एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट में आपको लीजन दिख रहा है। It could be an intraaxial lesion, it could be an extraaxial lesion. So first thing you will do is you will admit the patient. Depending on his consciousness, depending on his MRI findings, से कितना edema है, कितनी brain shift है, brain को कितना compress किया है, you will decide कि ये regular bed पे जाएगा और he will go into high dependency unit. You will start steroids. Steroids जो है for edema. Basically इसमें जो edema होता है that is interstitial edema. Interstitial edema is इसमें interstitial edema is basically tumors में जो edema होता है इस interstitial edema, जो trauma में edema होता है cytotoxic edema होता है। उसमें brain उसमें cytotoxic edema में there's destruction of the blood brain barrier। interstitial edema में there's just आपकी swelling हो जाती है and वो it responds to steroids। Then एक lesion है brain में, you need to start anti-epileptic drugs।
सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स में सीजर्स होते हैं, इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स में सीजर्स नहीं होते, रिमेंबर दैट। सुप्राटेंटोरियल सीजर्स के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो एईडीज हैं वो देने की जरूरत है। देन आपने देखना होता है कि फर्स्ट करें आपने एमआरआई करा लिया, देन आपने कोई और इमेजिंग करानी है, फॉर एग्जांपल न्यूरो नेविगेशन एमआरआई होता है, दिस इज अ स्पेशल एमआरआई विच इज लाइक अ जीपीआरएस सिस्टम। ये एमआरआई हमें सर्जरी में हेल्प करता है, एक न्यूरो नेविगेशन की मशीन होती है, this MRI is uploaded on it and it tells you कि अभी so it has a pointer and you point that pointer on the patient's head और वो आपको बताता है आप ट्यूमर के कहाँ पे हैं, आप ट्यूमर के कितने दूर हैं, so you will be able to navigate, so it's just like a GPS system, like a Google map of tumor surgery. Functional MRI होता है, functional MRI is basically to identify eloquent cortex, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई मोटर एरिया है, किसी को मोटर एरिया का ट्यूमर है एंड यू आर नॉट श्योर कि इसका मोटर एरिया कहाँ पे, तो आप फंक्शनल एमआरआई कराते हैं। फंक्शनल एमआरआई में क्या करते हैं कि वो पेशेंट को कहते हैं कि अपना हैंड मूव करें और हैंड मूव करते हुए वो वहाँ पे जो मोटर एरिया होता है वहाँ पे चेंज इन मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन वो कितनी तेज होती है, तो वो लाइट अप हो जाता है वो फंक्शनल एरिया, क्योंकि आप अपना हैंड मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग एमआरआई और आप वो देख रहे हैं। तो फंक्शनल एमआरआई मोटर के लिए होता है, स्पीच के लिए होता है, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स एक होता है उसके लिए होता है। देन देयर इज डिफ्यूजर टेंशन इमेजिंग। हमने अभी तक बात की है ब्रेन के दो होते हैं, ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर इज बेसिकली द ट्रैक्स। इसमें आपने जब अपनी न्यूरो साइंसेस पढ़ी होगी तो मुख्तलिफ ट्रैक होते हैं, जैसा ऑप्टिक ट्रैक है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलेट होता है, सिंगुलेट गायरस होता है, एमएलएफ होता है, मुख्तलिफ ट्रैक्स होते हैं। तो कभी तो सिर्फ ग्रे मैटर इम्पोर्टेंट नहीं होता, व्हाइट मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द आइडिया ऑफ द सर्जरी इज के एट द एंड ऑफ द डे सर्जरी ऐसी हो कि पेशेंट जिस तरह सर्जरी में जा रहा है उसी तरह सर्जरी से भी उसी के बाद वैसे ही हो। तो डिफ्यूजर टेंशन इमेजिंग इज बेसिकली ट्रैक्स की पूरी वो एक 3D इमेज बना के दे देता है और इन रिलेशन विद ट्यूमर्स के साथ। फिर यू नीड टू डिसाइड कि आपने सर्जरी क्या करनी है। इज इट गोइंग टू बी अ सिंपल बायोप्सी? फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जो मिडलाइन क्रॉसिंग ट्यूमर है, जिसका मैंने आपको पहले दिखाया था ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में, जो मिडलाइन क्रॉस कर जाता है, या फॉर एग्जांपल लिम्फोमा है या मल्टीफोकल डिजीज है, तो वहाँ पे बायोप्सी वुड डू, क्योंकि बटरफ्लाई लीजन मतलब दोनों लोब्स में जा रहा है, राइट से लेफ्ट में निकल के जा रहा है, यू कैन नॉट टेक आउट द होल ट्यूमर। तो आप सिर्फ बायोप्सी करें एंड दैट्स इनफ। लिम्फोमा जो है उसकी जो बेसिकली मैनेजमेंट है कीमोथेरेपी, तो आप बायोप्सी कर ले, दैट्स इनफ। हाउ वुड यू नो कि इंट्राऑपरेटिवली कि वो लिम्फोमा है या जीबीएम है? फ्रोजन सेक्शन एक चीज होती है दैट यू सेंड ड्यूरिंग सर्जरी और वो प्रिलिमिनरी आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट बता देती है। तो अगर कोई एलोक्वेंट कॉर्टेक्स है, मोटर एरिया है, तो आप वहाँ पे पूरा ट्यूमर नहीं निकालेंगे। यू डोंट वांट अ 24 ईयर बॉय राइट हैंडेड विद अ ट्यूमर ऑन द लेफ्ट साइड कि सर्जरी के बाद उसका राइट हैंड की वीकनेस हो जाए। यू वुडंट वांट दैट, सो यू विल try and be as safe as possible, तो आप debulk करेंगे। So biopsy, debulking, and then there is complete resection of the tumor, which is the best, क्योंकि सर्वाइवल में जितने फैक्टर्स देखे गए हैं कि क्या चीज है जो सर्वाइवल बढ़ाती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लायल ट्यूमर्स में, मैंने जोमास की बात नहीं करा, मैं ग्लायल ट्यूमर्स की बात नहीं करा। अभी मैं सर्जरी में जो कंप्लीट रिसेक्शन है उसमें ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, एस्ट्रोसाइटोमास जो हाई ग्रेड होते हैं, उनकी the only thing that increases survival is complete resection। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। दूसरा परफॉर्मेंस स्केल होता है कि पेशेंट का परफॉर्मेंस स्केल कैसा है, विच इज नोन एज द कर्नॉफी परफॉर्मेंस स्केल, केपीएस कहते हैं इसको, या आप जाके बाद में गूगल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि पेशेंट कितना फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, कैन ही वर्क ऑन हिज ओन, कैन ही टेक केयर अपने कैन ही टेक केयर ऑफ डेली चोर्स and is he functional independent, तो उसका KPS will be somewhere 90 or 100, which means he's just like me and you। कोई अगर फंक्शनली किसी को वीकनेस है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट नहीं है, फंक्शनली डिपेंडेंट है, इज ऑन बेड, ही नीड असिस्टेंस, तो उसका कर्नॉफी परफॉर्मेंस स्केल इस 70 तक चला जाएगा। तो दिस इज नंबर्स के हिसाब से 1 से लेकर 90 और 100 तक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्री ऑपरेटिव कर्नॉफी परफॉर्मेंस स्केल कैसा है, बिकॉज जितना अच्छा कर्नॉफी परफॉर्मेंस स्कोर होगा पोस्ट ऑप पेशेंट का, उतना ही अच्छा आउटकम होगा इन टर्म्स ऑफ हिज फंक्शनैलिटी। तो सर्जरी में क्रेनियोटमी करेंगे अगर आपने डीबल्क करना है, मतलब मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन करनी है। डीबल्क का मतलब आपको कुछ ट्यूमर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने कंप्लीट रिसेक्शन करनी है उसके लिए भी आपको क्रेनियोटमी करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू रिमूव द बोन फ्लैप। और सिर्फ अगर बायोप्सी करनी है तो एक बरोल से भी हो सकती है। सही है।
आप जो मैं फिर बता रहा हूँ, जो ग्लायल न्यूप्लाज़म्स होते हैं उनके लिए आप इमीडिएटली 72 आवर्स में या तो स्कैन कराते हैं या 6 वीक में कराते हैं, क्योंकि 72 आवर्स के बाद पोस्ट ऑपरेटिव चेंजेस शोज अप एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि इफ दिस इज अ रिकरेंस व्हिच मींस कि ट्यूमर वापस आ गया है, रेजिडुअल व्हिच मींस कि ट्यूमर छोड़ दिया था, so it will be very difficult to tell. So either within 72 hours और 6 weeks में ग्लायल ट्यूमर्स के लिए, एंड जो नॉन ग्लायल ट्यूमर्स हो सकते हैं उसमें आप 3 मंथ में करा सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट एडजुवेंट मैनेजमेंट, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आ गई. तो द मोस्ट कॉमन कीमोथेरेपी फॉर ग्लायोमास इज कीमोजोलोमाइड, TMZ, एंड ये सर्जरी के बाद देते हैं, हाई ग्रेड ट्यूमर्स में देते हैं. जो मैंने आपको कहा था कि पीछे जेनेटिक मार्कर्स का दिखाया था, तो वहाँ पे एक जेनेटिक मार्कर था 1p19q, 1p19q. तो अगर उसकी डिलीशन हो जाए ग्लायल ट्यूमर्स में, तो इट शोज के वो टीमोजेलोमाइड से अफेक्ट अच्छा होता है. तो जो वो जेनेटिक मार्कर जिसका डिलीटेड होता है वो टीमोजेलोमाइड से अच्छा, उसका अच्छा बेनिफिट होता है, और जो नहीं होता उसका इतना अच्छा बेनिफिट नहीं होता. तो ये मुश्किल बात है, नहीं भी आ रहा है तो सही रहेगा. तो कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी होता है. रेडिएशन थेरेपी भी मुख्तलिफ तरीकों की होती है. होल ब्रेन रेडिएशन होती है, तो ग्लायल न्यूप्लाज्म में या मेटास्टेटिस में यू गिव होल ब्रेन रेडिएशन. फिर स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी होती है, जहाँ पे आप फोकस रेडिएशन देते हैं, और वो एरिया जो कि नॉर्मल एरिया होता है वहाँ पर आप रेडिएशन नहीं डालते, वहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि वो एरिया डिस्ट्रॉय ना हो, और वहाँ पे रेडिएशन की वजह से रेडिएशन निकोसिस एक चीज होती है वो नहीं होती. तो दिस इज स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी. मुख्तलिफ टर्म्स हैं, साइबर नाइफ और गामा नाइफ आपने सुना होगा, ये दो हैं. दो आई डोंट नो आप दो मोडालिटीज हैं जो कराची में अवेलेबल है. एंड दिस इज बेसिकली स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, एंड इसमें यू गेट फोकस रेडिएशन. तो होता ये है कि रेडिएशन देने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं. आप एक ही दफ़ा जो होल ग्रेन रेडिएशन होता है उसमें फर्स्ट करें, आप अगर आपने 50 ग्रे देना है तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे वीक पे, और आप वो ब्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से को देंगे. जो स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन होता है वहाँ आप छोटे हिस्से को ज़्यादा रेडिएशन दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्मल एरिया नहीं होता, स्टीरियोटैक्टिक होती है. उसमें आप सिर्फ उस एरिया को दे रहे होते हैं जो कि डिजीज होता है. जो होल ब्रेन रेडिएशन होता है उसमें आप नॉर्मल ब्रेन को भी लग रही होती है, तो उसमें आप इतनी ज़्यादा रेडिएशन नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 ग्रे देनी है तो आप उसको 4 ग्रे पे डिवाइड करके एक हफ्ता 2 हफ्ते में देंगे. जहाँ तक स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन होती है उसमें आप छोटे एरिया को ज़्यादा रेडिएशन दे सकते हैं. तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन देंगे उतना उसका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होगा. पोस्ट ऑफ एमआरआई की हमने बात कर ली. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोग्नोसिस, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. For high-grade glial tumors, anaplastic and GBM, the prognosis is not very good. The only thing that increases survival is gross total resection, कि आप पूरा ट्यूमर निकाल दें. So for a prognosis with GBM, which is grade 4 tumor, it's hardly 1 year, 14 months. We hardly see patient living more than 14 months. अभी तक कोई, and that is with surgery, with radiation, with chemotherapy, they do not live more than 14 months. ग्रेड 3 में 17 मंथ्स हो जाएगा एनाप्लास्टिक में. मेनिंजियोमास ग्रेड 1 होते हैं, दे लिव लॉन्ग, उसमें कोई मसला नहीं होता, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं. ग्रेड 2 में रिकरेंस रेट ज़्यादा हो जाता है.